Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 19th of October. In this video a total of 15 important current affairs will be discussed students, where we will be talking about AICTE and SIDM. They have signed a memorandum of understanding. Then we will be talking about Visa, which has unveiled a platform for global bank to issue stablecoin and other tokens. We will be talking about World Bank, which has retained the India's GDP forecast. Then we will be talking about World Merchandise Trade Growth Forecast. All these things will be discussed in detail, so stay tuned till the end. Also students, if you are new to our channel and haven't subscribed to us, do subscribe, as we are one-stop solution for current affairs. The content we provide on daily basis is top-notch and it will be very beneficial for your competitive exams. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. Next, we are talking about national affairs. AICTE, that is All India Council for Technical Education, and SIDM, that is the Society of Indian Defence Manufacturers. So AICTE and SIDM, they have recently signed a memorandum of understanding that will boost the academic industry synergy in the defense and aerospace sector. That means we will be talking about various courses, skilling, research and development, innovation, use cases of various technologies and upcoming research in the defense and aerospace sector. This MOU, it will establish a strong partnership in the academia, that is with various institutions and defense industry. Also, this MOU, it has been signed for 3 years and it will help us to build strong partnership in the defense industry to hire the skilled graduates who are trained in the relevant skills. Next is banking and finance. Visa, they have unveiled a platform for global banks to issue stable coins and other tokens. So first of all thing, remember, it is Visa Incorporation. It is an American multinational payment card service and they have launched VTAP. So Visa has launched VTAP, that is Visa Tokenized Asset Platform. This is a platform that will help the banks issue stable coins and other fiat backed tokens internationally. And this VTAP, that is Visa Tokenized Asset Platform, it is expected to go live by 2025. This will now enable the banks to mint, burn and transfer tokens, offering infrastructure for financial institutions that are aiming to leverage the advantages of blockchain technology. Right, apart from this, remember PayPal Holdings Incorporation, they have already introduced their stable coin, that is PYUSD, right, to the market, while Stripe Incorporation will now enable the merchants to accept stable coins for online transaction. Basically, we can say in simple terms, these stable coins are a form of, or basically are a type of cryptocurrency. Next, economy and businesses. World Bank has retained India's GDP forecast for FY25 to 7% due to the rising private consumption. I repeat, World Bank, they have released a report that stated in which they have projected India's GDP growth forecast for FY25 to be around 7%. The projection is mainly attributed because of the higher agriculture production and robust employment.
Apart from this, World Bank has also projected India to grow by 6.7% in FY26. Correct. If we talk about World Bank, who is the president of World Bank? Ajay Banga, headquartered in Washington DC. And when was World Bank established? It was 1944. The World Bank was established. Next is WTO has reduced the 2025 World Merchandise Trade Growth Forecast to 3%, that was earlier 3.3%. So WTO, that is World Trade Organization, they have released their biannual trade outlook and they have reduced their projection of the world merchandise growth to 3%, that was earlier projected to be around 3.3%, and this is for 2025. So the world merchandise trade in 2025 is expected to be around 3%. Apart from this, it has increased the merchandise trade growth projection for year 2025 to 2.7%, where earlier it was projecting it to be 2.6%. Also here remember, the report projected that global GDP, that is the global gross domestic product, to be around 2.7% for both 2024 and 2025. Then if we talk about World Trade Organization, who is the Director General? Ngozi Okonjo-Iweala, headquartered in Geneva, Switzerland, and World Trade Organization was established in 1955. Right, moving on. Next is appointments and resignation. Omar Abdullah, as you can see him on the right side, has been sworn in as the new Chief Minister of Jammu and Kashmir Union Territory. Whereas on the left, you can see Surendra Kumar Chaudhary has been appointed as the Deputy Chief Minister of Jammu and Kashmir. Also remember, Omar Abdullah has been sworn in as the Chief Minister of Jammu and Kashmir for the second time. Correct. Also remember, he became the first Chief Minister of Jammu and Kashmir Union Territory after the abrogation of Article 370 in 2019, and Surendra Kumar Chaudhary now became the Deputy Chief Minister of Jammu and Kashmir. Next is Utkarsh Small Finance Bank has appointed Mary Kom and Sunil Chhetri as their brand ambassadors. So take a note of this. Mary Kom, very famous boxer, and Sunil Chhetri, very famous footballer. They have been appointed as the brand ambassador of Utkarsh Small Finance Bank. They will be promoting various products. They will be promoting various branches, social media campaigns, also initiatives such as your financial literacy campaign. Next, one more thing here. Remember, if we are talking about Mary Kom, she has been honored with Padma Shri in 2006, Padma Bhushan in 2013, Padma Vibhushan in 2020. Right, if we talk about Sunil Chhetri, he has been awarded with Arjuna Award in 2011, Padma Shri in 2019, and Major Dhyanchand Khel Ratan Award in 2021. Next is Kais Saied don't go with the picture here, it is a repeated picture. Kais Saied secured the second term as the president of Tunisia with 90.69% votes. He was first elected in 2019 as the president of from the following death of the former president Kais Saied. Right, now remember, Kais Saied secured the second term as the president of Tunisia. Directly you need to remember this. Next is Deputy Governor of RBI Rajeshwar Rao got the 1 year extension. I repeat, ACC, that is Appointment Committee of the Cabinet, chaired by Prime Minister Narendra Modi, has approved the reappointment of M. Rajeshwar Rao as the Deputy Governor of RBI for 1 year with immediate effect from 9th of October till further orders. Right, next is we are talking about SpaceX, and SpaceX has made history recently. SpaceX has launched Mega Starship rocket on the 5th flight test. Why this is important? As you can see in this picture, this is a launcher pad. So when this rocket was launched, the booster rocket after launching came back and was landed on these hangar itself, right? That is the reason it became reusable and it was a controlled landing, right? And it became very big news also, correct? So that is the reason SpaceX was in news recently. Another thing SpaceX was in news is because SpaceX has launched Mega Starship rocket.
right? This is a second stage fully reusable super heavy lift launch vehicle. It was launched from Texas, USA, right? If we talk about this, it can carry up to 150 metric tons of fully reusable and 200 metric tons of expendable goods. And Starship, remember, it is powered by 6 engines, 3R Raptor engines and 3R Raptor vacuum engines that are designed for the use in the vacuum of space. If we talk about SpaceX, who is the chief executive officer of SpaceX? Elon Musk. Where is the headquarter of SpaceX? It is in California, USA, and it was founded in 2002. Next is Indian Navy has launched missile cum ammunition barge LSAM 12. What is LSAM? That is LSM is landing ship ammunition, right? And this LSAM is basically Yard 80. So Indian Navy, they have launched missile cum ammunition barge LSAM 12 or Yard 80, which will enhance the naval logistic and firepower. This is the 6th of the 8 missile cum ammunition barge project. It is built by MS Seacon Engineering Private Limited. Let me show you here. It is built by, take a note of this, MS Seacon Engineering Engineering Projects Private Limited, that is Visakhapatnam, Andhra Pradesh based. If we talk about Indian Navy, who is the Chief of Naval Staff? Admiral Dinesh Kumar Tripathi. Moving on to sports, Spanish tennis player Rafael Nadal, very famous player, right? Rafael Nadal has announced retirement after the 2024 season, and right now you will be seeing that Davis Cup will be his final event for 2024. Coming back, you can see Rafael Nadal in the picture. He is from Spain. He is a 22-time Grand Slam champion, and in 2024 Davis Cup will be his final event that is scheduled to be held in Spain only. That will be held in the month of November. Correct? Rafael Nadal, he started his career in 2001 at the age of just 15 years of age, and he became the world number 1 for the first time in 2018 after defeating Roger Federer in 2008 Wimbledon final. Then apart from this, you can see here some of the victories and the awards and honors of Rafael Nadal. Moving on, next is important days. World Post Day, it is observed on 9th of October, and this is basically to commemorate the anniversary of the establishment of Universal Postal Union that was established in 1874, and it was established in Switzerland. The theme of this marks the 150th anniversary of the establishment of UPC, that is 150 years of enabling communication and empowering peoples across nation. Moving on, next is Chief Minister Bhupendra Patel has unveiled a commemorative postage stamp to mark 25 years of Mudra Port. See here, if we talk about this Mudra Port, where is this port located? Mudra Port is located in Gujarat, right? So Chief Minister Bhupendra Patel has unveiled a commemorative postage stamp to mark 25 years of Mudra Port, right? Take a note of this, important. Next is an important one, that is the 92nd edition of the Indian Air Force Day was observed on 8th of October. This is to commemorate the establishment of Indian Air Force on 8th of October in 1932, right? And 8th of October, it marks the 92nd anniversary of the Indian Air Force, and there is a theme for this day, that is Bharatiya Vayu Sena Saksham Shashakt Atmanirbhar, that is your potent, powerful and self-reliant. So this is the theme that you need to remember for the 92nd edition of Indian Air Force Day. Who is the Chief of Air Staff? Air Chief Marshal Amarpreet Singh. Next, World Mental Health Day. It is observed on 10th of October, and it is observed basically to create awareness about the mental health issues and encourage the efforts to support those experiencing the mental health issue. There is a theme for this, that is mental health at work. This is the theme here, and for the first time this day was observed in 1992, and here you can see a green ribbon, right? This is the symbol for World Mental Health Day. Next is World Egg Day. It is observed on 11th of October,
and it is basically to create awareness about the high quality protein and vital nutrients that are found in the egg. And the reg, basically remember, it is a very important source for nutrition, as well as it plays a really important role in the economy for the farmers around the world. This year it was the 28th edition of the World Egg Day that was observed on 11th of October, and there is a theme for this, that is United by Eggs. Right, and as I mentioned, it is the 28th edition, so it was first observed in 1996, that is 11th of October 1996. So students, that's all for the day. Now let's move to the one-liners. AICTE and SIDM, they signed an MOU to boost academy and industry synergy in the defense and aerospace sector. Visa has unveiled platform for global banks to issue stable coins, that is a form of cryptocurrency only. Then World Bank has retained India's GDP forecast for FY25 to 7% due to rising private consumption. WTO has reduced 2025 world merchandise trade growth forecast to 3% from 3.3%. Then Omar Abdullah has been sworn in as the new Chief Minister of Jammu and Kashmir Union Territory, whereas Surendra Kumar Chaudhary will be the new Deputy Chief Minister. Then Utkarsh Small Finance Bank has appointed Mary Kom and Sunil Chhetri as their brand ambassadors. Kayas Seed has secured the second term as the President of Tunisia with 90.69% votes. Deputy Governor of RBI Rajeshwar Rao got 1 year extension. SpaceX, they have launched Mega Starship rocket on 5th test flight. Indian Navy has launched missile cum ammunition barge LSAM-12. Then Spanish tennis player and very famous player Rafael Nadal has announced retirement after the 2024 season of the Davis Cup. Where will this be played? It will be played in Spain only. Then World Post Day observed on 9th of October. 92nd edition of the Indian Air Force Day observed on 8th of October. World Mental Health Day observed on 10th of October. World Egg Day observed on 11th of October. So that's all for the day, students. Now let's move to the revision part. National Quantum Mission has recently selected premier institutions to establish dash in India. First of all, remember, in quantum means at a very small scale, right? Very small. In this, there are two things that I want you to remember. Qubits, right? There are multiple qubits. Say for example, when we are dealing with 0 and 1, right? These are binary numbers, right? We are dealing with either 1 or 0 in various computer languages, right? In quantum, we talk about qubits, right? And we also know there are quantum computers. These quantum computers, they have very fast processing speed. Multiple years of processing done by a small computer can be done through this quantum computer in just a matter of minutes. So question asked is that this National Quantum Mission has recently selected premier institution to establish what? It is to establish thematic hubs in India. This will include the establishment of 4 thematic hubs, right, in India. These will basically help to bridge the gap between the research and industry and will promote innovation. Next, which ministry has recently partnered with the Military College of Telecommunication Engineering to foster innovation for defense application? Which is it? It is MEITY. MEITY and Indore based. Indore is in Madhya Pradesh. Indore based MCTE, that is your Military College of Telecommunication Engineering, right? And along with MEITY, they have recently partnered to foster innovation and drive research and development, also to promote technological advancement in the defense sector. Correct? So main focus will be on research and development, and this research and development will be in the areas such as your artificial intelligence, machine learning, then chip design, semiconductor design, and 5G as well as 6G. Next, Union Minister Nirmala Sitharaman, she is our finance minister, and she has attended recently the 9th annual meeting of the Board of Governors of AIIB, that is Asian Infrastructure Investment Bank. Question asked here is that this 9th edition of the annual meeting of the Board of Governors of AIIB was held where? It was held in Samarkand, that is in Uzbekistan. Correct? Take a note of this. And here the theme of this 9th annual meeting of the Board of Governors of AIIB was building resilient infrastructure for all.
Next, which state has recently received $162 million loan? $162 million. This is a loan. Question asks is which state has received this loan, and it was given by Asian Development Bank, basically to enhance the tourism in that particular state. So Himachal Pradesh has received this $162 million loan, and it was received by Asian Development Bank, and the aim here is to promote tourism. In Himachal Pradesh, selected areas such as your Mandi, Hamirpur, Kullu and Kangra district, these will be promoted, and here renovations will be carried out of various public spaces so that it can become tourism friendly, and it can also attract more in tourism in Himachal Pradesh. Next, which ministry has recently released new guidelines for handling delays in submitting income tax return? So recently it is Ministry of Finance. They have recently released the new guidelines for handling the delays in submitting of the income tax returns. These new rules will be coming into play from 1st of October 2024. And here, remember, it has stated that the power, or it has stated that if the amount of claims is up to 1 crore or more than 1 crore in a particular year, the Principal Commissioner of Income Tax have been vested with the powers to accept or reject such applications. Right? Moving on. Who was jointly awarded the Nobel Prize in Physiology or Medicine in 2024 with American development biologist Victor Ambros for the discovery of microRNA. So we are talking about the Nobel Prize in the field of physiology or medicine. So who has been honored with this award? Right option is Gary Bruce Ruvkun. Right? He is an American development biologist, right? And along with him, remember one more, that is Victor Ambros. Victor Ambros and Gary Bruce Ruvkun, they were jointly awarded with the Nobel Prize in Physiology or Medicine by the Stockholm Institute, that is in Sweden. And why were they awarded? They were awarded for the discovery of microRNA and their role in the post-transcriptional gene regulation. Next is in which state DRDO has recently conducted 3 flight tests of the advanced 4th generation very short range air defense system. So it is the state of Rajasthan, in which it is DRDO that has conducted the flight test of advanced 4th generation very short range air defense system. Correct? And in Rajasthan too, it was held at the Pokhran Field Firing Range. The test was done from the ground-based portable launcher. Next, which organization has celebrated the 83rd Foundation Day on 1st of October? It is CSIR, Council of Scientific and Industrial Research, and their arm, that is National Institute of Science, Communication and Policy Research. They have recently observed their 83rd Foundation Day. When was it? It was on the 1st of October. Also, this CSIR, it works to bridge the gap between the science and industry. Next, which group has recently entered into a strategic partnership with Bhutan's Druk Holding and Investment to boost investment in solar and hydropower project? It is Reliance Group. Right? They have entered into a strategic partnership with the Bhutan's Druk Holding and Investment to boost the investment in the renewable energy sector, that included your solar and hydropower project. Their aim is to establish 1270 megawatt of solar and hydroelectric power projects in the Himalayan kingdom. Next, which state's traditional products have recently received the GI tag by the GI registry? So recently it is the state of Assam, in which the GI registry has registered or given 8 products the GI tag from Assam. Right? If we talk about them, Joe Guaran, Maibra, Joe Bidwi, Joe Gishi,
right? These are the variants of the rice beer that have been recently granted with the GI tag, and a total of 8 products have been granted here GI tag. One of them is Narzi. Narzi is basically semi-fermented dish made with the jute leaves. Next, students, is your homework part. First is you have to give me 3 current affairs related to AI. Second, you have to give me who became the 80th member of International Solar Alliance. Third question, it is who has won the Nobel Prize in Literature. And fourth question, you have to give me which Indian city hosted India-Africa Summit. India-Africa Summit was hosted by which state of India? So these are your 4 important current affairs, students. You have to give me the right option in the comment section. If you find the session interesting, students, do hit the like button, and if you are new to our channel and haven't subscribed, do subscribe to us. We are one-stop solution for current affairs. Now, students, let's move to the Hindi segment of this video. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also, students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल अफेयर्स में AICTE एंड SIDM की. AICTE है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड SIDM है सोसाइटी फॉर इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स. इन दोनों के बीच में एक MOU साइन हुआ है ताकि फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स सेटअप की जा सके फॉर डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर. बेसिकली हम बात करें जो कॉलेज इंस्टीट्यूशंस हो गई, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, वहाँ पे बच्चों को स्किल्स प्रोवाइड कराने का काम किया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए इन द रिस्पेक्टिव फील्ड, राइट. एंड इससे क्या होगा, वो जॉब रेडी हो सके, उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा सकें ताकि जो भी डिफेंस सेक्टर एंड एरोस्पेस सेक्टर में जो भी कंपनीज हैं वो डायरेक्टली बच्चों को यहाँ से हायर कर सकें इन रिस्पेक्टिव डोमेन जो जिस स्किल में ट्रेंड है. ठीक है, इससे क्या होगा, जो डिफेंस सेक्टर है एंड एरोस्पेस सेक्टर, इसमें बढ़ावा देखने को मिलेगा, इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी. नेक्स्ट, बैंकिंग एंड फाइनेंस पर आ जाते हैं. तो वीज़ा के द्वारा भी एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है ग्लोबल बैंक्स के लिए टू इशू स्टेबल कॉइन्स अदर टोकन्स. आई रिपीट, वीज़ा ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है फॉर ग्लोबल बैंक्स टू इशू स्टेबल कॉइन्स. ये है प्लेटफॉर्म आपका वीज़ा टोकनाइज्ड एसेट प्लेटफॉर्म. ये 2025 में लागू हो जाएगा. इसके अंडर स्टेबल कॉइन्स एंड फिएट बैक टोकन्स को यहाँ पे इंटरनेशनली लॉन्च किया जाएगा, जिससे VTAP एनेबल करेगा बैंक्स को मिंट करने के लिए, बर्न करने के लिए एंड ट्रांसफर करने के लिए टोकन ऑफरिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि आपके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जैसे हम बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी पे बेस्ड रहेंगे. तो ये जो स्टेबल कॉइन्स रहेंगे ना, ये एक तरीके के क्रिप्टो करेंसी हैं जो लॉन्च की जाएंगी. दैन यहीं पर बात करें पेपैल होल्डिंग्स इनकॉर्पोरेशन, इन्होंने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किए हैं स्टेबल कॉइन्स जो कि है आपका PYUSD. ठीक, चलिए, इवन आप देखेंगे दुबई में क्रिप्टो करेंसी की बात चल रही है, तो दुबई में अगर आपको रियल एस्टेट खरीदनी है तो आप क्रिप्टो करेंसी से भी यहाँ पे रियल एस्टेट को खरीद सकते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं इकोनॉमी एंड बिजनेसेस के ऊपर. वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो GDP ग्रोथ है इंडिया का फॉर FY25 उसको 7% रखा गया ड्यू टू राइजिंग प्राइवेट कंजप्शन. यहीं पे हम देख रहे हैं एग्रीकल्चर जो आउटपुट रहेगा उसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया की ग्रोथ पर. वहीं पे हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी रॉबस्ट है इंडिया का. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में ग्रोथ देखने को मिल रही है. सर्विस सेक्टर कहीं ना कहीं ग्रो हो रहा है.
AI का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, बट इन द फ्यूचर हमें कुछ और महीनों में पता चलेगा कि AI का जो फुल फ्लैज इम्पैक्ट है वो कितना है, क्योंकि जॉब में अगर हम देखें तो जो आपकी कंप्यूटर साइंस की जॉब्स हैं, IT फील्ड है, उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा कटौती होती हुई दिख रही है जॉब्स की। तो ये डाटा वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज़ किया गया था। प्रेसिडेंट रहेंगे अजय बंगा, हेडक्वार्टर रहेगा इसका वॉशिंगटन DC में, एंड इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1944 में। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने 2025 की जो वर्ल्ड मर्चेंडाइज ट्रेड ग्रोथ है उसको रिड्यूस कर दिया। पहले ये प्रोजेक्ट कर रहे थे 3.3% की ग्रोथ, अब उसको रिड्यूस करके कर दिया गया है 3% की। यहीं पे अगर मैं बात करूँ ग्लोबल GDP, ये भी रिड्यूस कर दी गई है। ग्लोबल GDP का जो एक्सपेक्टेड है अब वो है 2.7% की फॉर 2024। इवन 24-25 के लिए जो आपकी GDP ग्रोथ एक्सपेक्टेड है वो 2.7% ही रहेगी। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर जनरल कौन रहेंगी? नगोजी ओकोंजो-इवेला। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, एंड 1955 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट पर आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पर। हम बात कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के नए चीफ मिनिस्टर, वो हैं ओमार अब्दुल्ला, आप इनको यहाँ पे राइट में देख सकते हैं, एंड सुरेंद्र कुमार चौधरी ये बने हैं डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, आप इनको लेफ्ट में देख सकते हैं। ओमार अब्दुल्ला का ये सेकंड टर्म रहेगा एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। इन्होंने अपॉइंट किया, आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, मैरी कॉम एंड सुनील छेत्री को एज देयर ब्रांड एम्बेसडर। मैरी कॉम की बात करें तो ये काफ़ी फेमस बॉक्सर हैं। मैरी कॉम के अगर हम अवार्ड्स की बात करें तो इनको पद्मा श्री से सम्मानित किया गया 2006 में, इनको पद्मा भूषण से सम्मानित किया गया 2013 में, पद्मा विभूषण से इनको 2020 में सम्मानित किया गया, एंड अर्जुन अवार्ड से इनको 2003 में सम्मानित किया गया था। यहीं पे सुनील छेत्री की अगर हम बात करें तो इनको अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2011 में, पद्मा श्री से इनको 2019 में, एंड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से इनको 2021 में सम्मानित किया गया। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो MD एंड CEO कौन रहेंगे? गोविंद सिंह। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में, एंड इसको फाउंड कब किया गया था? 2016 में। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं कायस सी। आप पिक्चर पे मत जाइए, ये ओल्ड पिक्चर है। इन्होंने सिक्योर किया सेकेंड टर्म एज द प्रेसिडेंट ऑफ ट्यूनीशिया, डायरेक्टली याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI राजेश्वर राव। इनको 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया, राइट। ये अभी पहले 9 अक्टूबर 2024 से इनका ये एक्सटेंशन स्टार्ट हो जाएगा। किनका? राजेश्वर राव का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। इसमें SpaceX की बात कर रहे हैं, जिनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? इलॉन मस्क। इन्होंने लॉन्च किया मेगा स्टारशिप रॉकेट को ऑन द 5th टेस्ट फ्लाइट। ये एक 2 स्टेज फुल्ली रियूजेबल रॉकेट है। 2 स्टेज कैसे कि इसमें आप देखेंगे एक आपका रैप्टर इंजन है, 3 रैप्टर इंजन्स हैं, एंड 3 रैप्टर वैक्यूम इंजन्स हैं जो कि वैक्यूम में यूज़ किए जाएंगे। 150 मेट्रिक टन तक का ये रियूजेबल वेट को कैरी कर सकता है, एंड 250 मेट्रिक टन तक एक्सपेंडेबल इसका वेट कैपेसिटी रहने वाली है, राइट। यहीं पे आप देखेंगे ये रॉकेट को अभी टेस्ट किया गया था, एंड बेसिकली ये जो स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट है इसने अभी एक कंट्रोल लैंडिंग की इन द इंडियन ओशन। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इंडियन नेवी। इन्होंने लॉन्च किया मिसाइल कम एम्यूनेशन बाज LSAM-12 को। ये LSAM क्या है? लैंडिंग शिप एम्यूनेशन, जिसको हम यार्ड 80 भी बोलते हैं, ठीक है। आप इसको पिक्चर में देख सकते हैं। ये 6th वेसल है ऑफ द 8 मिसाइल कम एम्यूनेशन प्रोजेक्ट, एंड इसको इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किया गया मिसाइल कम एम्यूनेशन बार्ज को। इसको बनाया किसके द्वारा किया है? MS सीकन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इन विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। अगर इंडियन नेवी की बात करूँ तो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। न्यू दिल्ली में इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1950 में। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर। स्पेनिश टेनिस प्लेयर, काफ़ी फेमस प्लेयर हैं ये, राफेल नडाल, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है आफ्टर 2024 सीजन, एंड ये भी फाइनल सीजन कौन सा प्ले करेंगे? डेविस कप ये खेलेंगे रिसेंटली, जो कि भी स्पेन में होने वाला है इन द मंथ ऑफ नवंबर, राइट। तो इनका ये आखिरी इवेंट रहेगा, एंड इसके बाद ये रिटायरमेंट ले लेंगे। अगर हम बात करें राफेल नडाल की, ये 22 टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन रह चुके हैं। 15 साल की उम्र में इन्होंने टेनिस खेलना शुरू किया था 2001 में, देन 2008 में ये वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर बन गए थे आफ्टर डिफीटिंग रॉजर फेडरर।
आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके कुछ मेजर चैंपियनशिप्स टाइटल्स ये यहाँ पे इन सालों में इन्होंने जीती है। नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पर। वर्ल्ड पोस्ट डे ऑब्जर्व किया जाता है 9 अक्टूबर को टू बेसिकली कमेमोरेट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, जो कि 1874 में इस्टेब्लिश किया गया था स्विट्जरलैंड में। इसके 150 साल हो गए हैं, तो इसको सेलिब्रेट करने के लिए जो डे ऑब्जर्व किया गया उसकी थीम है 150 ईयर्स ऑफ एनेबलिंग कम्युनिकेशन एंड एम्पावरिंग पीपल्स अक्रॉस नेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं, फिर अभी याद रखेंगे, गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ने अनवेल किया कमेमोरेटिव स्टैम्प टू मार्क 25 ईयर्स ऑफ मुद्रा पोर्ट। मुद्रा पोर्ट कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट आ जाते हैं, फिर 92nd एडिशन ऑफ इंडियन एयरफोर्स डे ऑब्जर्व किया गया 8 अक्टूबर को, राइट। एंड इंडियन एयरफोर्स डे ऑब्जर्व कब किया जाता है? 8 अक्टूबर को, टू बेसिकली सेलिब्रेट करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन एयरफोर्स, जो कि 8 अक्टूबर 1932 में इस्टेब्लिश किया गया था। इस बार हमने उसका 92nd इंडियन एयरफोर्स रेजिंग डे ऑब्जर्व किया। इसकी एक थीम है भारतीय वायुसेना सक्षम सशक्त एंड आत्मनिर्भर, ये इनकी थीम रहेगी। चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन रहेंगे? एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर। 10 अक्टूबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। एंड जो लोग मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराने का ये काम करता है। इसकी एक थीम याद रखेंगे, मेंटल हेल्थ एट वर्क। ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की, जो कि कब ऑब्जर्व किया जाता है? 10 अक्टूबर को। एंड पहली बार इस डे को कब ऑब्जर्व किया गया था? 1992 में इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है ग्रीन रिबन, राइट। ये आपका सिंबल रहेगा वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे का। मूविंग ऑन, वर्ल्ड एग डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 11 अक्टूबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, वर्ल्ड एग डे, राइट। एंड ये डे ऑब्जर्व किया जाता है बेसिकली टू रेज अवेयरनेस अबाउट एग, जो कि एक हाई प्रोटीन फूड है, राइट। इसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स हमें देखने को मिलते हैं। एंड इस बार हमने 28वां एडिशन ऑब्जर्व किया है वर्ल्ड एग डे का, जो कि 11 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया था। इसकी एक थीम याद रखेंगे, यूनाइटेड बाय एग्स। ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड एग डे की। पहली बार इसको कब ऑब्जर्व किया गया था? 1996 में इसको पहली बार ऑब्जर्व करा गया था। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं वन लाइनर्स पर। AICTE एंड SIDM ने एक MOU साइन किया ताकि एकेडमी और इंडस्ट्री के बीच में पार्टनरशिप हो सके एंड डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर को इससे बढ़ावा मिल सके। वीज़ा ने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया ग्लोबल बैंक्स के लिए, जो इशू कर पाएंगे स्टेबल कॉइन या फिर हम कह सकें आपके क्रिप्टो करेंसीज। देन वर्ल्ड बैंक ने रिटेन किया इंडिया का GDP फॉरकास्ट फॉर FY25 टू 7%। देन WTO ने रिड्यूस किया 2025 का वर्ल्ड मर्चेंटाइज ट्रेड ग्रोथ फॉरकास्ट टू 3%, जो कि पहले 3.3% था। उमार अब्दुल्ला ये नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। एंड सुरेंद्र कुमार चौधरी ये डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। दैन उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक इन्होंने अपॉइंट किया मैरी कॉम को एंड सुनील छेत्री को एज देयर ब्रांड एम्बेसडर्स। कायस सेद इन्होंने सिक्योर किया सेकंड टर्म एज द प्रेसिडेंट ऑफ ट्यूनीशिया विद 90.69% वोट्स। डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI राजेश्वर राव को अपॉइंट किया गया, इनको 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया। देन स्पेसएक्स ने लॉन्च किया मेगा स्टारशिप रॉकेट ऑन 5th टेस्ट फ्लाइट। इंडियन नेवी ने लॉन्च किया मिसाइल कम एमुनेशन बार्ज LSAM-12 को। देन स्पेनिश टेनिस प्लेयर राफेल नडाल इन्होंने अनाउंसमेंट रिटायर कर दिया आफ्टर द 2024 सीजन। आखिरी इवेंट इनका रहेगा डेविस कप, जो कि कहाँ पर? स्पेन में होगा। देन वर्ल्ड पोस्ट डे 9 अक्टूबर को, 92nd इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को एंड वर्ल्ड एग डे 11 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाएगा अक्रॉस द ग्लोब। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर। किस स्टेट ने रिसेंटली रिसीव किया $162 मिलियन का ये लोन रिसीव किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक से, ताकि वहाँ पे टूरिज्म डेवलपमेंट की जा सके? तो वो है हिमाचल प्रदेश ने ये लोन रिसीव किया है। यहाँ पे जो पब्लिक प्लेसेस हैं, राइट, उनको यहाँ पे बेटर करने के लिए, राइट। यहीं पे हम देखेंगे एरियाज जैसे मंडी। देन मंडी के अलावा अगर हम बात करें तो आपका हमीरपुर, कुल्लू एंड कंगड़ा, इन डिस्ट्रिक्ट्स के यहाँ पे जो पब्लिक प्लेसेस है उनको बेटर किया जाएगा, ब्यूटिफिकेशन की जाएगी, राइट। कल्चरल सेंटर्स को खोला जाएगा, वहाँ पे हेरिटेज को प्रमोट करने की बात की जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म अट्रैक्ट किया जा सके।
नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली रिव्यू की नई गाइडलाइंस फॉर हैंडलिंग डिलेज इन सबमिटिंग इनकम टैक्स रिटर्न? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा यहाँ पे रिलीज की गई नई गाइडलाइंस फॉर हैंडलिंग डिलेज इन सबमिटिंग इनकम टैक्स रिटर्न। नेक्स्ट, हु वाज जॉइंटली अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन? विक्टर एम्ब्रोस के साथ मिलके कौन है वो है गैरी ब्रूस रोबकोन एंड विक्टर एम्ब्रोस। इन दोनों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन से। किस लिए इनको सम्मानित किया गया है? फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए एंड इनका जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन होता है उसमें जो रोल रहेगा। नेक्स्ट, किस स्टेट में डीआरडीओ ने अभी कंडक्ट करा 3 फ्लाइट टेस्ट ऑफ एडवांस 4th जनरेशन वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को यहां पे टेस्ट किया गया? कहां पर? राजस्थान में टेस्ट किया गया, पोखरान फील्ड फायरिंग रेंज में इसको टेस्ट किया गया, डीआरडीओ के द्वारा इसको टेस्ट किया गया है। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। एंड जो ये 4th जनरेशन वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम रहेगा, इसके 6 किलोमीटर तक की इसकी रेंज रहेगी। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने सेलिब्रेट किया 83rd फाउंडेशन डे ऑन 1 अक्टूबर 2024? तो CSIR, आई रिपीट CSIR ऑप्शन 4, इनके आम नेशनल एग्रीकल्चर साइंस कॉम्प्लेक्स, या फिर हम बोले इनके आम के द्वारा अभी 83rd फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया गया। नॉट नेशनल एग्रीकल्चर साइंस रिसर्च, बेसिकली आपको याद रखना है इनका आम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च। इसका 83rd फाउंडेशन डे यहाँ पे अभी ऑब्जर्व किया गया था न्यू दिल्ली में। एंड जो CSIR का काम क्या है, बेसिकली आपकी इंडस्ट्री में एंड साइंस के बीच में जो भी गैप है उसको पूरा करना, एंड जो भी यहाँ पे इनोवेशन है राइट, ताकि इंडिया एक ग्लोबल लीडर बन सके साइंस एंड इनोवेशन में, उसके ऊपर काम करना। नेक्स्ट है, किस ग्रुप ने रिसेंटली एंटर्ड किया इनटू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद भूटान ड्रग होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट्स इन सोलर एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स? तो वो है रिलायंस ग्रुप, राइट। इन्होंने अभी रिसेंटली एंटर किया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद द भूटान ड्रग होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट, ताकि सोलर एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया जा सके। 1270 मेगावाट्स के यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट्स को इस्टेब्लिश करने की बात की गई। नेक्स्ट, किस स्टेट के 8 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को यहाँ पे अभी GI टैग मिला है? वो है असम। इसमें से आ जाती हैं कुछ आपकी राइस बियर, जैसे अगर हम बात करें जैसे एक आ जाती है आपकी डिश ग्वाकी, ये एक डिश है, ट्रेडिशनल डिश है। एक आ जाता है नार्जी प्रोडक्ट, ये आपकी क्या है, सेमी फर्मेंटेड डिश जो कि जूट लीफ से बनती है। फिर इसी के अलावा माइब्रू जोऊ, ये माइब्रू जोऊ बिडवी, माइब्रू जुआ बिडवी, माइब्रू जू बिडवी, ये 3 तरह की माइब्रू, ये आपकी क्या है, राइस बेवरेज है, जिनको अभी टोटल 8 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको यहाँ पे GI टैग मिला। फिर एक फर्मेंटेड फिश डिश है जो कि है नाफम। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ जाता है, किस ऑर्गेनाइजेशन या मिनिस्ट्री को रिसेंटली लॉन्च किया गया अन्ना दर्पण? ये अन्ना दर्पण एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि डिपो ऑनलाइन सिस्टम को रिप्लेस करेगा। अन्ना दर्पण FCI के द्वारा लाया गया है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ये बेसिकली जो आपकी सप्लाई चेन है ना उसको स्ट्रीमलाइन करेगा, उसको ईज में लाएगा। एंड जैसे मंडी हो गई, मिल्स हो गई, जैसे इसी के साथ रीजनल, जोनल, डिविजनल लेवल पे जो भी आपकी मंडीज हो गई, मिल्स हो गई, उनका एक बेटर सप्लाई चेन सेटअप करने का ये काम करेगा अन्ना दर्पण। नेक्स्ट, किस कंट्री के द्वारा बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को लाया गया है इंडिया के साथ? तो इंडिया एंड UAE के बीच में ये बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी रहेगी, इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे, राइट। ये रिप्लेस करेगी एक ट्रीटी को जो थी आपकी BIPPA ट्रीटी, ये अभी खत्म हो गई थी सितंबर में, इसने रिप्लेस किया BIT को, बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को, आई मीन इसकी जगह पर अब ये आ गई है, राइट। यहीं पे अगर हम बात करें इंडिया का ODI ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट UAE में अप्रैल 2000 से लेके अगस्त 2024 तक $15.26 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट, नेम अ न्यू सेविंग बैंक अकाउंट जो कि रिसेंटली लॉन्च किया गया था बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा फॉर हाई एंड कस्टमर्स डिजायरिंग प्रीमियम सर्विसेज। तो यह है मास्टर स्ट्रोक, उस बैंक अकाउंट का नाम है जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा लॉन्च किया गया था। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ही सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट यहां पे किया है। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली सिक्योर करा लार्जेस्ट एवर फॉरेन करेंसी लोन टर्म ऑफ $1.265 बिलियन?
तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा ये अमाउंट रिसीव किया गया है, ये लोन रिसीव किया है। ग्रीन एंड सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स में यहाँ पे फंडिंग की जाएगी इस अमाउंट से। यूएस डॉलर में मिला है, यूरो में मिला है ये पैसा, एंड जैपनीज येन में ये पैसा, इन 3 करेंसीज में इनको रिसीव हुआ है। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज चीफ सेक्रेटरी यूपी का। उत्तर प्रदेश के कौन नए चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं? वो है मनोज कुमार सिंह। ठीक है, ये मनोज कुमार सिंह 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं ऑफ यूपी कैडर। अगले पे आ जाते हैं, किनको अपॉइंट किया गया? मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एलआईसी का। तो कौन अपॉइंट किए गए हैं? सिद्धार्थ मोहाटी। इनको यहाँ पे और नियुक्त किया गया है, राइट। एंड इनका टर्म 7 जून 2025 तक रहेगा। अगले पर आते हैं, प्यूमा इंडिया ने किस क्रिकेटर को, या फिर हम बोलें प्यूमा इंडिया नेम्ड इंडियन क्रिकेटर नितेश कुमार रेड्डी, इनको यहाँ पे घोषित किया ब्रांड एम्बेसडर, राइट। एंड किसके साथ इनको यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया? तो एक तो गए नितेश कुमार रेड्डी, दूसरे भी कौन है क्रिकेटर? रियान पराग। तो रियान पराग और नितेश कुमार रेड्डी, इन दोनों को यहाँ पे प्यूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। अगले पर आते हैं, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट किए गए हैं? वो है जस्टिस डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी। अगले पर आते हैं, हु हैज़ बीन स्वॉर्न इन एज द 13वां चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। झारखंड के 13वें चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? वो है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन का ये तीसरा टर्म रहेगा लगातार, 3rd कॉन्सिक्यूटिव टाइम, 3rd टाइम ये चीफ मिनिस्टर बने हैं यहाँ पर। ठीक है, एंड याद रखेंगे यहीं पे अगर मैं बात करूँ गवर्नर कौन है झारखंड स्टेट के? वो हैं सीपी राधाकृष्णन। नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया 58th प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। यूनाइटेड किंगडम के 58 चीफ मिनिस्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं? वो हैं कीर स्टैमर। ये किनको सक्सीड करेंगे ये ज़रा बताओ, या फिर मैं बता देता हूँ, ऋषि सुनक। इंडियन थे ये, इंडियन बॉर्न थे, करेक्ट। एंड इनको सक्सीड करके ये नए यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बने 58th। अगले पर आते हैं, किनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया 66 चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। तो 66 चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के कौन बने हैं? वो हैं जस्टिस शील नागू। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, किनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया इंटर्म मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ बंधन बैंक लिमिटेड। तो रतन कुमार केश, इनको यहाँ पे एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया गया है बंधन बैंक लिमिटेड का। अगले पर आते हैं, किनको रिसेंटली रीअपॉइंट किया गया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडियन एनर्जी एक्सचेंज 3 साल के लिए, 10 अगस्त 2024 से स्टार्ट हो जाएगा इनका फिर से टर्म। वो है सत्यनारायण गोयल। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, किनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का। तो किनको अपॉइंट किया गया है यहाँ पे? वो हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो नए एमडी एंड सीईओ हैं। क्या नाम रहेगा उनका? गोविंद सिंह। ठीक है, गोविंद सिंह। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, 16वीं फाइनेंस कमीशन, करेक्ट। इन्होंने 5 मेंबर को एक कॉन्स्टिट्यूट है 16वीं फाइनेंस कमीशन ने एक 5 मेंबर की एडवाइजरी काउंसिल सेटअप की एंड इन्होंने अपॉइंट किया पूनम गुप्ता को एज द कन्वीनर ऑफ दिस काउंसिल। बिल्कुल सही। अगले पर आ जाते हैं, किनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया प्रिंसिपल एडवाइजर ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फॉर नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। टीबी को जड़ से ख़त्म करने के लिए एक कमेटी सेटअप की गई और एक प्लान लाया गया है, करेक्ट। एंड टारगेट है कि हम जल्द से जल्द टीबी को यहाँ पे ख़त्म कर सकें फ्रॉम इंडिया। इसके लिए एक कमेटी सेटअप की गई थी, एक एडवाइजरी पैनल सेटअप किया गया था। पूछा जा रहा है कि वो जो एडवाइजर प्रिंसिपल एडवाइजर कौन रहेंगे उसके ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए फॉर द नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। क्या नाम रहेगा उनका? वो है सौम्या स्वामीनाथन। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, किनको अपॉइंट किया गया मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पेटीएम बैंक्स लिमिटेड का। तो किनको अपॉइंट किया गया है? अरुण कुमार बंसल को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एमडी एंड सीईओ पेटीएम बैंक के। ये किनको सक्सीड करेंगे? ये सक्सीड करेंगे सुरेंद्र चावला। अगले पर आते हैं, किनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया नया प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल सक्सीडिंग पुष्पा कमल दहल प्रचंडा। तो केपी शर्मा ओली यहाँ पे नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं नेपाल के एंड ये किनको सक्सीड करेंगे? पुष्पा कमल दहल प्रचंडा को।
नेक्स्ट पे आ जाते हैं, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत संचार निगम लिमिटेड। BSNL के कौन नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं? तो वो है रॉबर्ट जेरार्ड रवि। ये किनको सक्सीड करेंगे? ये सक्सीड करेंगे प्रवीण कुमार पुरावर को। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द को चेयर ऑफ द अलायंस ऑफ CEO क्लाइमेट लीडर्स। सो सुमंत सिन्हा, राइट। सुमंत सिन्हा अपॉइंटेड एज द को चेयर ऑफ द अलायंस ऑफ CEO क्लाइमेट लीडर्स। ये CEO क्लाइमेट लीडर्स बेसिकली एक इनिशिएटिव था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, राइट। 2014 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था ताकि जो CEO हैं ग्लोबली कंपनीज़ के, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के, वो साथ आएँ एंड वो फ्यूचर को डिसाइड करें कि कैसे हम अपने क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड को आगे प्रोग्रेस करें। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली री-इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट अंटिल 2027। तो वो है रॉबर्ट मेट्सोला। ये 2027 तक यहाँ पर इलेक्ट की गई हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ रवांडा। तो रवांडा की प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट की गई हैं? पॉल कगामे। नेक्स्ट, किस बैंक ने अभी रिसेंटली रिसीव किया अप्रूवल फ्रॉम RBI फॉर द रीअपॉइंटमेंट ऑफ कादम्बली पॉल थॉमस एज देयर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आने वाले 3 सालों के लिए? तो किस बैंक ने ये अप्रूवल दिया? वो है, या फिर किस बैंक को अप्रूवल मिला RBI से? वो है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ HSBC होल्डिंग PLC। वो कौन रहेंगे? जॉर्ज एल हेनरी। फिर आ जाते हैं, किनको रिसेंटली अभी 3 महीने का एक्सटेंशन मिला है फ्रॉम ACC टू कंटिन्यू एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द NHPC लिमिटेड। तो किनको 3 महीने का एक्सटेंशन मिला है? राजेंद्र प्रसाद गोयल को यहाँ पे 3 महीने का एक्सटेंशन मिला है। 3 मंथ्स का एक्सटेंशन इनको यहाँ पर मिला है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ फेडरल बैंक लिमिटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years विद इफेक्ट फ्रॉम 23 सितंबर 2024। सो कृष्णा वेंकटा सुब्रमण्यम, राइट। इनको अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फेडरल बैंक लिमिटेड का आने वाले 3 सालों के लिए। ये किनको सक्सीड करेंगे? ये सक्सीड करेंगे श्याम श्रीनिवासन को। अगले पर आते हैं, किनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया नया प्राइम मिनिस्टर ऑफ एस्टोनिया। तो एस्टोनिया के नए प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं? वो हैं क्रिश्चियन माइकल। एंड ये किनको सक्सीड करेंगे? ये सक्सीड करेंगे काजा कालस। फिर आ जाते हैं, हु हैज़ रिसेंटली बिकेम एन एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार। तो म्यांमार के एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन है? वो है मिन ऑन्ग हैंग। अगले पर आते हैं, किन्होंने अज्यूम किया चार्ज एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड। तो वो है DK मुराली। अगले पर आते हैं, किनको रिसेंटली रिलेक्ट किया गया इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मेंबर फ्रॉम इंडिया। ये है नीता मुकेश अंबानी। ये पहली इंडियन वीमेन बनी थी, राइट, जो कि मेंबर बनी थी IOC की 2016 में। एंड अभी वापस से 142nd IOC सेशन हुआ था जिसमें इन्होंने इनको 100% वोट्स मिले, करेक्ट। एंड ये वापस से रिलेक्ट कर ली गई हैं एज द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, किनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया फेडरल डायरेक्टर ऑफ 55th एंड 56th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा के। तो किनको अपॉइंट किया गया है? वो है शेखर कुलभूषण कपूर को। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स होमवर्क पार्ट पर। आपको मुझे 3 करंट अफेयर्स देने हैं रिलेटेड टू AI। ये आपका पहला है। दूसरा होमवर्क रहेगा आपको बताना है अभी रिसेंटली नोबेल प्राइज़ किन्होंने जीता है लिटरेचर में। थर्ड क्वेश्चन आता है, कौन सी सिटी इंडिया की होस्ट करेगी इंडिया अफ्रीका समिट को अभी, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन, मेरे को इनका आंसर अभी देना है, राइट। एंड इसी के साथ साथ एक और बता दो, फोर्थ क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि किस स्टेट में वो पहली स्टेट बनी जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया है एक डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम। डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम ये किन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में या कौन सी स्टेट में इंडिया की, राइट। तो ये आपके 4 होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे स्टूडेंट्स। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। एंड अगर आप नए हमारे साथ जुड़े और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स।